methods I informed you for preparation of amine, and these are not only 6 methods, maybe more than 6, but in your syllabus only 6. First is from nitro compound, second is from ammonolysis, third is from reduction of nitrile, fourth is from reduction of amide, fifth is from Gabriel Thalamide reaction, and sixth is from Hoffman bromamide degradation reaction. Out of these 6 minutes were over yesterday. कल 5 मेथड कंप्लीट हो गए थे. So see, reduction by reduction of nitro compound. There were 3 reducing agents, either H2 in presence of NiPT/PD, or SN with HCl, or Fe with HCl. Next, that is by ammonolysis. By ammonolysis, if alkyl halide will be in excess amount, then it form a mixture of primary, secondary, tertiary, and quaternary amine. But if we want to prepare the primary amine, then ammonia must be in excess. This information is I had given to you yesterday. Then after, by reduction of nitrile, in this again we have the 3 reducing agent. One is LiAlH4, second is H2NiPT/PD, NaHG with C2H5OH, ethanol. Next, amide, reduction of by reduction of amide. So in this, the reducing agent is LiAlH4. All the reducing agent will give the hydrogen and release the oxygen. Next, Gabriel Thalamide. This is very important. This is name reaction also. I informed you yesterday that Gabriel Thalamide completes in 3 steps. In first step, Thalamide with AOS form the potassium salt of Thalamide. This potassium salt of Thalamide react with alkyl halide, then it form the N-alkyl Thalamide, and last aliphatic, then it form primary aliphatic amine. Primary aliphatic amine. And I informed you the important information that by Gabriel Thalamide we can mainly produce primary aliphatic amine. We can't produce primary aromatic amine. Why? Because the aryl halide is not undergo SN reaction. क्योंकि aryl halide SN reaction नहीं करता है. So this was the last topic yesterday. Now I am going to start the next topic, that is today's first topic and the last preparation method by Hoffman bromamide degradation reaction. So once again, anyone please tell me, voice and screen both are clear? Yes, sir. Yes, Okay. clear. So thank you. Yes, sir. So we are going to discuss the Hoffman bromamide degradation reaction. Hoffman is the name of scientist. Hoffman scientist का नाम है. Bromamide. Bromamide is the reagent which we'll use here. So this contain the 2 word. Bromamide is made of 2 word, bromine and amide. So when amide, this is CONH2, means when any amide treated with bromine, किससे रिएक्शन करेगा? ब्रोमीन से. एंड aqueous or alcoholic NaOH. When any amide treated with bromine and aqueous or alcoholic NaOH, then by removal of carbonyl group, इस प्रोसेस में ये CO यहाँ से निकल जाएगा and N comes and attach directly with the alkyl carbon. नाइट्रोजन जो है वो एल्किल कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा टू फॉर्म द RNH2 amine. Next, Na will react with this CO जो कार्बोनिल था उससे रिएक्ट करके Na2CO3.
and OH will react to form H2O. So once again, see here, what is Hoffman bromamide degradation reaction? Hoffman is the name of scientist. So when any amide treated with bromine Br2 and or alcoholic NaOH, then it form primary amine first degree with sodium carbonate, sodium bromide and water. These three are the byproduct. Main है first degree and most important information in Hoffman bromamide degradation. What is the meaning of degradation? इसका मतलब क्या है? So see, in Hoffman bromamide, जो first degree this first degree amine will have one carbon less than taken amine. जो भी amide हम लेंगे अमाइन में जो बना है उसमें एक कार्बन कम होगा, वन कार्बन विल बी लेस। वेयर द वन कार्बन बिकम्स रिड्यूस, कहाँ पे वन कार्बन रिड्यूस हुआ? दिस सीओ, सीओ का कार्बन इसमें काउंट हो रहा था, दिस सीओ इज नाउ रिलीज्ड आउट, ये सीओ यहाँ से निकल गया तो एक कार्बन वहां पे क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। मीन्स इफ वी विल टेक पेंटेनामाइड, अगर हम पेंटेनामाइड लेते हैं 5 कार्बन वाला, सो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी ऑफ 4 कार्बन, ब्यूटेनामाइन। इफ वी विल टेक हेक्सेनामाइड 6 कार्बन वाला, देन जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी हेक्सेनामीन, सॉरी पेंटेनामीन, दैट इज 5 कार्बन। एक एक कार्बन अमाइन में कम रहेगा, कार्बन विल बी लेस। इट इज रिटन हियर द अमाइन विच फॉर्म्ड कंटेन वन कार्बन लेस देन दैट प्रेजेंट, जो अमाइन बनता है उसमें एक कार्बन कम होता है देन द टेकन अमाइड, जो अमाइड हम लिए थे उससे अमाइन में एक कार्बन कम होता है। एंड ड्यू टू रिड्यूस इन नंबर ऑफ कार्बन इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कार्बन रिड्यूस हो रहा है, that's why the word degradation is written here. So what is Hoffman? This all information I am giving to just remember the process कि हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में होता क्या है। तो हॉफमैन साइंटिस्ट का नाम है, हटा दीजिए। ब्रोमेमाइड इज सेइंग कि इसमें रिएक्शन ब्रोमीन और अमाइड का हो रहा है, एंड डिग्रेडेशन इज सेइंग कि इन प्रोडक्ट वन कार्बन विल बी लेस। सो व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन? तो आप कहेंगे व्हेन या दैट केमिकल रिएक्शन इन विच एनी अमाइड react with bromine and aqueous or alcoholic NaOH, then it form first degree amine, तब ये बनाता है first degree amine। The amine which formed contain one carbon less than the taken amide, जो अमाइन बनता है उसमें टेकन अमाइड से एक कार्बन कम होता है, वन कार्बन लेस। एंड देन आफ्टर यू विल राइट दिस इक्वेशन, फिर आप उसके बाद इस इक्वेशन को क्या कर देंगे? लिख देंगे। इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, अगर फिर उसके बाद नोट्स में आएंगे, नोट्स में आप लिखेंगे इन दिस रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ एल्किल और एरिल ग्रुप टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन टू, ठीक है, नाइट्रोजन एटम। मतलब कह रहा है कि इस प्रोसेस में जो एल्किल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन से अटैच था, ये कार्बोनिल कार्बन निकल जा रहा है, सो ये जा करके नाइट्रोजन से अटैच हो जा रहा है। ठीक है, सो रिमेम्बर दिस, दिस विल बी नोट, ये आपके स्टेटमेंट में नहीं रहेगा। आप क्या लिखेंगे? हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन केमिकल रिएक्शन इन it is treated with bromine and aqueous or alcoholic NaOH, then it form first degree amine which having one carbon less than taken and then after this equation and then note, in note you will write this 2 line, आप ये 2 line note मिल, then Hoffman bromamide is over. So preparation method of
amine is over. All the preparation method of amine is over. Now, after preparation method, as you know, धीरे धीरे फूड पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक में. सो आफ्टर प्रिपरेशन मेथड, नेक्स्ट वन इज द टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी. अमाइन की फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी में हम दो चीजें पढ़. वन इज बॉइलिंग पॉइंट एंड सेकंड इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर. और कोई फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ते नहीं हैं. सॉल्युबिलिटी इन water. Solubility in water. So now I'm going to discuss the physical property of amine, that is boiling point and solubility in water. So first of all, boiling point. So what is written here? Amines have boiling point higher than the alkane. अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा होता है. अमाइंस हैविंग बॉइलिंग पॉइंट हायर देन द एल्केन. अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा होता है, बट जनरली लोअर देन एल्कोहल. लेकिन एल्कोहल से कम होता है. मीन्स व्हाट इज द बॉइलिंग पैटर्न? बॉइलिंग पैटर्न क्या है? एल्केन एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो देन अमाइन, यानी अमाइन का ज्यादा होगा. और अमाइन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? एल्कोहल का. सो मे बी अरेंज करने को आए. लाइक हियर यू कैन सी, देखिए बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है. ठीक है, दिस इज अमाइन C4H9NH2. This is alcohol and this is hydrocarbon. C, अमाइन का मोलर मास 73, हाइड्रोकार्बन का मोलर मास 72, एल्कोहल C4H9OH का मोलर मास 74. सो अमाइन, हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्केन एंड एल्कोहल. सी, हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट 300, अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट 350 एंड एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 390. मीन्स एल्कोहल का सबसे ज्यादा है और हाइड्रोकार्बन का सबसे कम है. यही यहाँ लिखा है कि अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा होता है बट एल्कोहल से कम होता है. सो will be there in physical properties. First subhead, boiling point. In this you write amines have boiling point higher than alkane but lower than alcohol of comparable molecular weight. अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एल्केन से ज्यादा होता है लेकिन एल्कोहल से कम होता है. एंड देन आफ्टर यू विल ड्रॉ दिस टेबल. आप इस टेबल को ड्रॉ करेंगे. नाउ ये तो बात हो गई कि अमाइन का कंपैरिजन एल्केन और एल्कोहल से. ये अमाइन का कंपैरिजन एल्केन और एल्कोहल से हो गया. नाउ अनदर आफ्टर दिस, ठीक है, आफ्टर दैट टेबल you will write the another paragraph in boiling point, that is for degree. ठीक है, so see here, अगर केवल अमाइन अमाइन का कंपैरिजन करते हैं, ऑल आर 73, सब सेम मॉलिक्यूलर मास वाले, सब में सेम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, बट दिस इज NH2 मीन्स फर्स्ट डिग्री अमाइन, दिस इज NH means second degree amine and this is N means third degree amine. पहला वाला फर्स्ट डिग्री अमाइन है, दूसरा वाला सेकंड डिग्री अमाइन है, तीसरा थर्ड डिग्री अमाइन. दिस यू कैन सी फर्स्ट डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट 350 है, सेकंड डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट 329 है, थर्ड डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट 300
मीन्स क्या समझ में आया कि फर्स्ट डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, थर्ड डिग्री अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइन is inversely proportional to degree. Inversely proportional degree of इसका मतलब क्या है? फर्स्ट डिग्री is having highest boiling point, second degree is having बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्ड डिग्री. सो ये बतला रहा है कि फर्स्ट डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है और थर्ड डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है. सो रिमेंबर this information. In boiling point you will write two things. First you will write boiling point means amines have boiling point higher than alkane and lower than alcohol. alkane ज्यादा होता है, अल्कोहल से कम होता है. देन आफ्टर यू विल राइट द पैटर्न. पैटर्न में आप लिखेंगे एल्केन लेस, देन आपका आया अमाइन and then alcohol, alcohol, and then after you will draw this table. टेबल ड्रॉ कर देंगे. and then after second point you will write boiling point of amine is inversely proportional to degree of amine. means first degree have the highest boiling point, second degree have the lower boiling point, and third degree will have the least boiling point. आपके इस टेबल में पहले से मेंशन है. बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक इज ओवर. बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक तब हमारा जा करके ओवर होगा. नेक्स्ट टॉपिक यू विल राइट दैट इज solubility in water. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? solubility in water. कि amines are soluble in water or not. So remember, amines are soluble in water. amines water में soluble होते हैं. Remember this information. Amines are soluble in water. Now, there are three types of amine: primary, secondary and tertiary. And आपको बताया गया है कि only those organic compounds are soluble in water which will have the hydrogen bond. जिनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वही वाटर में soluble होते हैं. Then you can see amines are having hydrogen bond. amines के पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. So you will say amines are having hydrogen bond. That's why they are soluble in water. ठीक है. In this, the primary and secondary amines have a strong hydrogen bond to each other and water. Means कह रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्ड अमाइन मॉलिक्यूल के बीच भी होता है एंड हाइड्रोजन बॉन्ड अमाइन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच भी होता है. बट इन टर्शियरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन अमाइन मॉलिक्यूल but it form between amine and water molecule. फिर से ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं. Your heading will be there solubility in water. In this you will write amines are soluble in water. amines water में soluble होते हैं because amines are having hydrogen bond. क्योंकि amines के पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. नोट, देन आप लिखेंगे नोट. नोट में फर्स्ट पॉइंट molecules of primary and secondary amines can form a strong hydrogen bond between each other and to water. means primary secondary amine में हाइड्रोजन बॉन्ड उनके मॉलिक्यूल के बीच भी होता है और वाटर के बीच भी होता है. एंड सेकेंड नोट, molecules of tertiary amine is not having hydrogen bond between them. means उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है बट दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं. उनके पास खुद का नहीं होता है लेकिन बनाते हैं.
उनका खुद का भी होता है और वो वाटर के साथ। सो ये हो गया solubility in water. Amines are soluble in water or not? Then amines are soluble in water. Why amines are soluble in water? Because amines have their own, means amines have hydrogen bond, in which primary and secondary have their own hydrogen bond, as well as they are form the hydrogen bond with water. And tertiary amines are not having their own hydrogen bond, but they are form the hydrogen bond with water molecule. And then after physical property over, हमारा physical property over हो जाएगा. Now we will discuss the chemical properties. So amines are showing following 7 chemical properties. अमाइंस ये 7 केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. जैसे ये टॉपिक खत्म हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी, चैप्टर विल बी ओवर. चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट जो इस चैप्टर का है वो हमको नहीं पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में नहीं है. सो chemical properties of amines. So once again, anyone please tell me, voice and screen both are clear, or any problem is there in voice or screen? Clear. Okay. So see, how many chemical properties are shown by amines? Amines कितने chemical properties show करते हैं? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What are that chemical properties? Basic character means amines basic nature के होते हैं, वो अपने basic character को show करते हैं. First, second, acylation. Acylation, but this is not Friedel-Crafts acylation. This is acylation only. Benzoylation, this is important one. ये previous year board में था. Carbyl amine reaction, this is name reaction and very important reaction. डाइजेशन, ये Hinsberg name reaction and important. And ES reaction means electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको फर्स्ट चैप्टर से बताया जा रहा है, दैट इज हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट. But in amine 3 are there: halogenation, nitration and sulfonation. So the first character is basic character, but basic character we will discuss character हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे. ठीक है, we will start from acylation. बेसिक कैरेक्टर सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे एंड बाकी शुरू करते हैं. सो बेसिक कैरेक्टर जो आपका है वो हम सबसे लास्ट में, ये सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे. ये 7, 8 ये सबसे लास्ट में यहाँ तक. इट इज टिल पेज नंबर 33 फ्रॉम पेज नंबर 25 से 33. ठीक है, ये 7, 8 पेजेस जो हैं ये बेसिक कैरेक्टर के, थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, लार्ज टॉपिक है, इसलिए उसको एक सिंगल, ठीक है, क्लास में कंप्लीट करेंगे. This time we have the less time, approx 5-10 minutes. So we will start the topic which will be over within 5. So आप क्या कर लेंगे? If you want, then either write the chemical property in this series way, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or put a basic character as the last one, 7th one. Basic character को आप 7th one दे दीजिए. एसाइलेशन से 1, 2 शुरू करिए. सो योर फर्स्ट विल बी देयर एसाइलेशन. सो हम जा रहे पहला डिस्कस करने एसाइलेशन. सो व्हाट इज एसाइलेशन? सो सी, this reaction is shown by aliphatic and aromatic both the amine. पहला इंफॉर्मेशन, एसाइलेशन इज shown by, ठीक है, aliphatic and aromatic both the amine. First, second, acylation reaction is only shown by primary and secondary amine. Not acylation
रिएक्शन केवल प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन शो करता है, टर्शियरी अमाइन शो नहीं करता। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस एसाइलेशन रिएक्शन? इस एसाइलेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? दैट इज अमाइड। अमाइड इज द प्रोडक्ट ऑफ एसाइलेशन रिएक्शन। अमाइड क्या होता है? इसका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट इज अमाइड। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, द रिएक्शन मीन्स एसाइलेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्गर बेस देन अमाइन। क्योंकि अमाइन बेसिक नेचर है, सो इस रिएक्शन को कराने के लिए एक स्ट्रॉन्गर बेस यूज करते हैं विच विल बी स्ट्रॉन्गर देन अमाइन, दैट इज pyridine. सो मे बी क्वेश्चन की why why pyridine is used there? pyridine वहां पे यूज क्यों किया जाता है? देन रिमेम्बर, इस बात को याद रखिएगा कि इन एसाइलेशन, अभी आप देखेंगे इन एसाइलेशन HCl इस एसाइलेशन प्रोसेस में क्या बनता है? HCl बनता है, दैट इज एसिड। और एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकता है। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड द रिएक्शन बिकम शिफ्ट टूवर्ड्स, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है। सो टू प्रिवेंट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी को बचाने के लिए, रोकने के लिए, रिएक्शन को रिवर्स होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? रिवर्स होने से बचाने के लिए pyridine यूज करते हैं। वाई? बिकॉज द रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल in presence of HCl which is formed in the reaction. To cancel the effect of this HCl, HCl एसिड है, इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए यूज करते हैं दिस pyridine रिएक्ट विद द फॉर्म्ड HCl। जो भी HCl उसमें बनता है, pyridine उससे रिएक्ट करके उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। सो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाता। सो सी व्हाट इज एसाइलेशन? अब रिएक्शन देखते हैं। व्हेन एनी, ये फर्स्ट NH2 और सेकेंडरी, टर्शियरी ये देता ही नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी NH, these upper two are aliphatic amine and this one is aromatic, C6H5 है। सो एरोमेटिक, तो पहला आपको बताया गया था कि दिस एसाइलेशन रिएक्शन इज सोन बोथ द अमाइन। एसाइलेशन रिएक्शन एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों शो करता है, आपको यहाँ दिख रहा है। दोनों में कौन सा शो करता है? प्राइमरी सेकेंडरी, वो आपको दिख रहा है प्राइमरी सेकेंडरी एंड दिस वन इज आल्सो प्राइमरी बिकॉज NH2 इज नाउ। व्हाट इज द रिएक्शन? एसाइलेशन में रिएक्शन होता क्या है? सो व्हेन एनी और एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन एसिल क्लोराइड किससे रिएक्ट करेगा? एसिल या किससे रिएक्ट करेगा? एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये एसिड एनहाइड्राइड है, दिस वन इज एसिड एनहाइड्राइड एंड ऊपर के दोनों है एसिल। सो व्हेन एनी और एलिक और एरोमेटिक अमाइन react with acyl chloride or acid anhydride in presence of strong base, strong base क्या लिया गया था? strong base pyridine, ठीक है, से रिएक्ट, pyridine के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। देन यहाँ से H रिलीज होता, यहाँ से Cl रिलीज होता है। सो फ्रॉम द अमाइन, फ्रॉम नाइट्रोजन हाइड्रोजन इज रिलीज, तो एक बॉन्ड नाइट्रोजन फ्री होता है। फ्रॉम एसिल क्लोराइड Cl इज रिलीज, तो वन बॉन्ड कार्बन का फ्री होता है। दैट कार्बन एंड नाइट्रोजन फ्रॉम द बॉन्ड बिटवीन देम। इसका स्टेप नहीं
ना मत लिखिए ये, ठीक है। यू गेट दिस वन कि व्हेन फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री अमाइन रिएक्ट विथ एसिल क्लोराइड और एसिडिक एनहाइड, देन जो अमाइन है उसके नाइट्रोजन से H रिलीज होगा, जो एसिल क्लोराइड है उसके, ठीक है, एसिल क्लोराइड के कार्बोनिल ग्रुप से Cl रिलीज होगा या एसिल क्लोराइड से Cl रिलीज होगा। दिस H एंड Cl आर कंबाइंड टू फॉर्म HCl, ये HCl बनाएंगे। एंड N of amine and C of acyl chloride will be combined to form CONH. This is called amide. CONH को amide कहते हैं, अमाइड। सो अमाइन ग्रुप से कन्वर्ट हो जाएगा अमाइड ग्रुप में। देखिए क्या क्या बतलाया गया था, फिर से मिला लीजिए। एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों देता है, एलिफेटिक एरोमेटिक प्राइमरी सेकेंडरी। सो प्राइमरी सेकेंडरी। नेक्स्ट बेस के प्रेजेंस में देता है पिरिडीन बेस। प्रोडक्ट क्या बनाता है, अमाइड। हुज माइक इज ऑन, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। अमाइड बनाता है, इट इज फॉर्मिंग द अमाइड, सी द नेम अमाइड, ठीक है। एंड वाई pyridine इज यूज हियर, तो आपको बताया क्योंकि इसमें जो HCl बनता है, सो सी बन रहा है। दिस HCl मेक द रिएक्शन, ये HCl रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है। सो प्रिवेंट द रिवर्सिबल यूज द pyridine, हम pyridine यूज करते हैं विच कैंसिल द इफेक्ट ऑफ HCl। सो दिस इज primary or secondary amine react with acid chloride, anhydride or ester, then as product. This reaction is called acylation reaction. Then after you will write these three equation, and then after in note you will write this, note में आप ये लिख देंगे कि why pyridine is used there, pyridine वहां पे क्यों यूज करते हैं। सो दिस इज अबाउट द एसाइलेशन। हमारा एक केमिकल प्रॉपर्टी आज कंप्लीट हुआ, दैट इज एसाइलेशन। वन केमिकल प्रॉपर्टी इज ओवर, दैट इज एसाइलेशन। नाउ रेस्ट 6 chemical properties are there, we will start it in next class. So I'm going back in Tmap.